friends, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 8th October 2021. So let's start today's discussion. The first article states that NATO expels 8 Russian members. They were undeclared intelligent officers, it says. Now this article is important for us from we can say mains and prelims both, because the organization is important for us, that is NATO. Okay? The proper full form of NATO, if I say, is North Atlantic Treaty Organization. Okay? So the North Atlantic Treaty Organization is important for us from prelims point of view. First we'll see the article, what does the article states, and then we'll study about this organization, that what was the reason, the history of this organization, how many members are there, how does it functions. Okay? Now talking of the background of the article, it was stated, or it was said, that after investigation it came to know that total members of Russia, Russian members which were the part of NATO, that is NATO, out of that 8 members were such a members who were working there as an intelligence officer, like secretively reaching the information to their members. So when NATO organization came to know about this, they expelled such members. And if I speak of the history, actually from we can say 2014, the relation between NATO and Russia is not very good, because what happened, that if you will see the map, Ukraine as a country is very close to Russia, and it was seen in 2014 that Russia actually increased or invaded in the Ukraine's part. ठीक है, यूक्रेन में एक पर्टिकुलर पेनिनसुला है, क्रीमियन पेनिनसुला, वहाँ पे रशिया ने इन्वेड किया था. एंड तब से कहीं ना कहीं नाटो और रशिया का रिलेशन इज़ नॉट वेरी गुड. So NATO on Wednesday expelled 8 members of the Russians' mission to the military alliance, saying that they were secretly working as intelligence officer and have the size of Moscow's team able to work at its headquarters. So they were secretly reaching or telling all the informations to their Russian members, to the we can say government or the proper organization of Russia. We can confirm that we have withdrawn an accredence of 8 members of the Russia mission of NATO. ठीक है, NATO also record the number of positions that Russia can accredit. वहाँ पे टोटल 20 था, it is now come down to 10. उसमें से 8 लोग ऐसे मिल गए हैं. ठीक है. सो अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, तो रिलेशन बिटवीन NATO एंड रशिया हैज़ बीन इंक्रीजिंगली स्ट्रेन्ड सिंस मॉस्को annexed the Ukraine's Crimean Peninsula in the year 2014. तो ये चीज़ याद रख सकते हो कि रशिया ने यूक्रेन के कौन से पार्ट में इन्वेड किया था, दैट इज़ क्रीमियन पेनिनसुला, इन 2014. तब से रशिया और नाटो का रिलेशन इज़ वेरी वी कैन से इज़ नॉट दैट मच स्टेबल. ठीक है. सो द टू आर एट ऑड्स over Russia's nuclear missile development, aerial instructions, NATO airspace and buzzing. Now अब अगर मैं NATO के बारे में बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये बोला कि इंडिया एंड रशिया लेते हैं, इंडिया, रशिया, इज़राइल. ठीक है. और हम और एक ले लेते हैं इंडिया, चलो इंडिया, रशिया, इज़राइल ले लेते हैं. दिस 3 कंट्रीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विथ ईच अदर. तो अभी अगर फॉर एग्जांपल चाइना अगर जो है इंडिया पे अटैक करता है फॉर एनी रीजंस, LAC या सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से अगर अटैक करता है, तो क्या होगा अगर मेरे पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एज सच NATO, मेरी एनिमी, मतलब हम बोलते हैं ना दोस्त, मतलब दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, दैट्स द थिंग, कि अगर मेरे कंट्री के रिलेटेड कोई कर रहा है, तो मेरे जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ काम कर रहे हैं, दे विल कोलैबोरेटली और कलेक्टिवली वर्क विथ मी टू अटैक चाइना. तो दैट इज़ NATO. कि जो अटलांटिक हमारे ये है, जो अटलांटिक पार्ट है, वहाँ की कंट्रीज़ ने साथ में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन रखा है NATO करके, जिसमें कि अगर कोई भी एक एनिमी कंट्री जो अटैक करता है, या उस एनिमी कंट्री के अगेंस्ट अगर अटैक करना है, तो जितने भी NATO के कंट्रीज़ हैं वो सब साथ में आकर विल अटैक एंड विल हेल्प दी मेंबर कंट्री.
ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड में नाटो के बारे में बता सकते थे आपको। ठीक है, तो इट इज़ अ नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। इसका अगर सिंबल भी अगर मैं बोलूँ तो एक स्टार जैसा होता है समवॉट, तो यू कैन सी इट ऑन गूगल, आपको मिल जाएगा। सो ये जो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, सबसे पहले कोई भी ये चीज़ याद रखना, एनजीओ आ जाता है, इंटर रीजनल आ जाता है ऑप्शंस में, ये इंटर गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, जो कि 4 अप्रैल 1949 में हम बोल सकते हैं साइन किया गया था इसके बारे में। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा क्या कि अगर वेनेवर कोई भी, अगर मैं मान रही हूँ कि मैं इसकी नाटो की मेंबर हूँ, तो जहाँ पर भी उनको म्यूचुअल हेल्प चाहिए होगा मेरा किसी भी एक नॉन मेंबर एक्सटर्नल पार्टी के अगेंस्ट अटैक करने के लिए, तो मैं अटैक करूँगी उनको, बिकॉज मैं उस कंट्री की मेंबर हूँ, तो मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा। So the organization constitutes a system of collective defense whereby its member states agree for a mutual defense to an attack by a non-member external member party। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसकी हेडक्वार्टर किधर है, तो प्रॉपर इसका हेडक्वार्टर इज इन बेल्जियम। ओके, अब आ जाते हैं हम नाटो कैसे फॉर्म हुआ। ये तो थोड़ा स्टैटिक डेटा था। नाटो का अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा प्रॉपर वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उसको कवर करता है। क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होने के बाद भी यूएसए और यूएसआर, हमें पता है ये दो हमारे इमर्जिंग पावर थे वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे। तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ऐसा था कि स्टिल देयर वाज वी कैन से बैरियर और समथिंग ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप विद बोथ ऑफ देम। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था, यूएसएसआर जो है, अगर हम लोग मैप देखेंगे, यूएसए तो हमारा ये पार्ट आता है। ठीक है, यूएसए हमारा ये पार्ट बन जाता है, और अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं तो यूएसएसआर इधर था, यूएसए इधर था। ठीक है, उस टाइम पे हो क्या रहा था, बिकॉज ऑफ दी कॉमन ओपिनियन और कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म, यूएसएसआर वाज एबल टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस, वेयर यूएसए जो था वो कहीं ना कहीं उतना नहीं था, मतलब यूएसए का आइडियोलॉजी उतना मैचअप नहीं कर रहा था। तो यूएसए को लगा कि इट इज़ अ थ्रेट फॉर अस, अगर यूएसएसआर पूरी जगह कंट्रोल कर लेगा तो इट विल बी अ थ्रेट फॉर यूएसए, एंड देयरफॉर यूएसए इस चीज़ को लेकर आया विद द नेम ऑफ नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक। जितने भी नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज हैं, मतलब जो आना चाहते हैं, दे कैन बी अ मेंबर ऑफ इट। ठीक है, सो फॉर प्रोटेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं एक बैकअप तैयार करने के लिए यूएसए इस चीज़ के साथ आया। ये चीज़ क्लियर हो गई। सो ये जो ट्रीटी है ब्रुसेल में साइन की गई थी, विच इज़ इन बेल्जियम, और ट्रीटी एक्चुअली साइन हमारी हुई थी 17 मार्च 1948 को। ठीक है, और जब साइनिंग, अगर हम फाउंडिंग मेंबर्स देखें इसके, तो नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूके, ये सब उसके हम बोल सकते प्रीकर्सर या फाउंडिंग मेंबर्स थे उस टाइम के। और फिर प्रॉपर इसका जो ट्रीटी एज अ ट्रीटी जब से इसका वर्किंग स्टार्ट हुआ, दैट वाज 4 अप्रैल। ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन 17 मार्च एंड 4 अप्रैल। साइनिंग डेट वाज दिस, बट अगर मैं बोलूँ प्रॉपर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जैसे जो साइन हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, दैट वाज 4 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद कुछ और कंट्रीज, मतलब 48 में साइन होने के बाद 3 साल बाद, 2 साल बाद ग्रीस ज्वाइन हुआ, टर्की ज्वाइन हुआ, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर बने। ठीक है, और करेंटली अगर हम बात करें, अगर पोस्ट कोल्ड वॉर के सिचुएशंस की बात करें, तो बिकॉज ऑफ दिस नाटो क्या हो गया कि एक, मतलब अब आप उसके अगेंस्ट अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज आप मेंबर हो उसके, आप बाउंडेड हो उससे काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बैकअप, या फिर यूएसए ने खुद को बचा लिया इसी तरीके से। करेंटली अगर क्वेश्चन पूछा जाए, करेंटली 30 मेंबर्स आर देयर जो इसके मेंबर्स हैं। जो लास्ट मेंबर बने थे वो क्रोएशिया और अल्बानिया बने थे। ठीक है, सो ये सब कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए अबाउट नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया, दैट इज यमुना। यमुना क्या कर रहा है, यमुना में हो क्या रहा है, तो रिसेंटली यमुना की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक 21 डे प्रोग्राम चालू किया है, 21 डे ड्राइव चालू किया है अंडर क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया के बारे में आप सबको पता होगा। सो
क्लीन इंडिया के अंडर दिल्ली गवर्नमेंट ने 21 डेज प्रोग्राम चालू किया है टू क्लीन द रिवर ऑफ यमुना, ठीक है, टू क्लीन द रिवर ऑफ यमुना। और एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है, तो दिस एग्जैक्ट प्लेस ऑफ सराई कले खान, ठीक है। ये एक सेंटर के अंदर, मतलब यमुना का स्ट्रेच्ड पार्ट है ये, यहाँ पर फिलहाल क्लीनिंग हो रही है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर हम बोल सकते हैं एक्सकवेटर्स और सब यूज़ कर रहे हैं, ताकि जितने भी वेस्ट हैं और हाइसेथीन्स हैं उसको निकाला जाए। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हो इसको हाइसेथीन्स बोलते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हाइसेथीन मैंने क्या बोला, ये हाइसेथीन्स हैं। इसको रिमूव कर पाए ताकि फ्लोइंग प्रॉपर हो सके और क्लीनिंग कर पाए प्रॉपर, ठीक है। सो ड्राइव चल रहा है दिल्ली में करेंटली इसके रिलेटेड। और अगर मैं बात करूं, एक चीज़ है इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर सेफ्टी गियर्स, क्योंकि यमुना की अगर मैंने बात करूँ तो हमने कुछ टाइम पहले वी हैव स्टडीड कि यमुना की जो फ्लोइंग है उसमें एक ही प्लेस है, दैट इज़ द पाला इज़ अ रीजन वेयर द यमुना वी कैन से एंटर्स इन द सिटी, दिल्ली सिटी। तो दिल्ली के कुछ सिटीज़ में एंटर होने से पहले जो जगह है दैट इज़ पाला, सिर्फ एक यही जगह है विच इज़ हैविंग अ क्लीन यमुना, where the Yamuna is clean, except for this place everywhere it is a blackish water currently, ठीक है। सो इन सच वाटर्स इट वाज नोटिस कि जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, दे आर विदाउट अ बूट, विदाउट ग्लव्स, विदाउट मास्क, एंड नियर वाटर वी कैन कंसिडर देर आर सो मच ऑफ डिजीज, ठीक है। सो पाला को छोड़ के कोई भी जगह पर भी पानी साफ नहीं है, वहाँ पे ये लोग एंड पानी की जो मतलब क्लीनिंग भी कर रहे हैं, या तो वो नी तक है या तो ऑलमोस्ट वेस्ट तक पानी है, उसमें उतना देर खड़े होकर काम करना, इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म जो बोला जा रहा है अबाउट दिस मिशन, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के साउथ ईस्ट के विश्वेंद्र, उन्होंने बोला कि वो लोग करेंगे क्या, ये जो हाइसेथीन्स है उसको यहाँ से निकाल देंगे, दे विल क्लीन दिस पार्ट, और बाद में ये जो वाटर क्लीन वाटर बनेगा उसको वाटर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ देयर मेन प्लान। आफ्टर क्लीनिंग दिस पार्ट दे विल यूज़ इट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। तो ये उनकी प्लान है, रिसेंटली इनकी वर्किंग चालू है। डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन इन डिफरेंट प्रोग्राम्स अंडर क्लीन इंडिया इनिशिएटिव्स सिंस अक्टूबर 1 से इनकी फंक्शनिंग चालू है। हर एक सिटीजन्स इसमें एनजीओ के साथ साथ हमारा जो वन ऑफ दी यंगस्टर्स को गवर्नमेंट जो मौका देती है अंडर दिस नेहरू युवा केंद्र, तो नेहरू युवा केंद्र और हमारा एनजीओज, बहुत सारे एनजीओज इसमें साथ में काम कर रहे हैं। The East District has conducted several prongs run and 2,275 kilo of waste have been collected currently. इतने वेस्ट कलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। सो ये क्लीनिंग चालू है। अगर बाय चांस ऐसे कभी पूछा जाए क्लीन इंडिया के अंडर क्या कौन से रिवर को क्लीन किया जा रहा है दिल्ली के पास, सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस। नाउ इस आर्टिकल के थ्रू थोड़ा सा हम गंगा रिवर के बारे में देख लेते हैं कि इसकी फ्लोइंग कहाँ से है, कहाँ पर जाके मिलती है गंगा को, यमुना को गंगा कहाँ मिलती है, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इफ़ यू विल सी द मैप प्रॉपरली, ये हमारा गंगा है जो अलकनंदा से आता है प्रॉपर, ठीक है, और मतलब भागीरथी से आता है अलकनंदा के थ्रू एंड देवप्रयाग में मिलता है, तब जाके ये गंगा बनता है प्रॉपर। यमुना उसी के बाजू से अगर मैं बोलूँ एक वेस्टर्न स्लोप है जिसको पंदरपूंछ बोला जाता है, पंदरपूंछ। ये बंदरपूंछ जो पीक है हिमालय का, वहाँ से यमुना की ओरिजिन है, ठीक है। और यमुना के जो ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हो, चंबल, देन सिंध, बेतवा, केन और टंस, ये सब यमुना के जो हम बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। सो सबसे पहले यमुना जो है, ये क्वेश्चन है, ये चीज़ सबसे नोन चीज़ है कि यमुना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओनली, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में जाकर उससे क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में यमुना को जमुना बुलाया जाता है, ठीक है। जमुना जो कि वहाँ पे जाके ब्रह्मपुत्र से रिवर से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब यमुना जो है ये वन ऑफ द ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, इफ़ यू विल नो, यमुनोत्री ग्लेशियर जिसका हाइट पीक है 6,387 कुछ लगभग, वहाँ से ये ग्लेशियर से मेल्ट होता है, और जो वेस्टर्न साइड पीक है बंदरपूंछ पीक, वहाँ से वो स्लोप होते होते नीचे आता है,
ठीक है। तो उसका ड्रेनेज सिस्टम वहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ पर मिलता है वो, तो प्रॉपर गंगा को जो है प्रयाग, या फिर हम जो इलाहाबाद में प्रयागराज है वहाँ पर जाके वो एग्जैक्ट यमुना और गंगा मिलते हैं। ठीक है। अब इसके जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज भी जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं इनके, सिंध हो गए, बेतवा, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो यमुना के हैं टंस, देन चंबल और कौन से थे, केन। ठीक है। तो SBTCK। सो ये कुछ हमारे यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें से सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है टंस, जो कि गढ़वाल रीजन जो उत्तराखंड के वहाँ से फ्लो होकर फिर देहरादून के पास से जाते हैं। अगर मैं बताऊँ एग्जैक्टली ये रहा टन। ठीक है। और उसके कुछ इसी के कुछ रिवर्स के आगे जाके हम बोल सकते हैं कि मिलते हैं। और ये जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं ये आगे जाके अलग अलग स्टेट में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर बेतवा रिवर की बात करूँ तो बेतवा रिवर जो है प्रॉपर हमारा ये विंध्या रेंजेस हैं वहाँ मध्य प्रदेश में से जाता है बेतवा। इफ यू विल सी मध्य प्रदेश के एरिया से फ्लोइंग है इसका, एंड ये वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश वाटर है। देन उसके बाद अगर मैं सिंध बात करूँ, सिंध हमारा कहाँ गया, सिंध यहाँ है। ठीक है। सिंध ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मालवा प्लाटो। हमारा बेतवा कहाँ से था, बेतवा हमारा विंध्यान रेंजेस से था। सिंध हमारा जो कहाँ से है, तो ये हमारा मालवा प्लाटो के पास से ओरिजिन है इसका। ठीक है। और ये अशोकनगर, शिवपुरी, दताई, ग्वालियर ये सब जगह से ज्वाइन होकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में एंटर करता है। सिंध का एक याद कर सकते हो, सिंध के ऊपर एक डैम बन रहा है। ठीक है। जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बन रहा है। डैम्स हमारे पूछे जाते हैं कभी कभी, तो वो आप याद रख सकते हो, दैट इज मनीखेड़ा। ठीक है। सो सिंध में जो डैम बन रहा है दैट इज मनीखेड़ा। ऐसे याद सकते हो कि सिंध में जो भी प्रोजेक्ट से बहुत पैसे लगते हैं तो मनी बहुत यूज़ होता है, मनीखेड़ा, यू कैन रिमेंबर इन दैट वे। सो दैट इज़ वन ऑफ द डैम। उसके बाद चंबल की बात करूँ तो चंबल ये बोला जाता है वन ऑफ द पोल्यूशन फ्री रिवर ऑफ इंडिया, जो है वो चंबल को माना जाता है। चंबल इज़ दी वन ऑफ द पोल्यूशन फ्री रिवर्स ऑफ इंडिया। और इसकी जो ओरिजिनेशन है अगर हम बात करें कहाँ से, तो ये भी विंध्या माउंटेन की एक पीक है, सिंगार चोरी, वहाँ से इसकी ओरिजिन है, जो विंध्या रेंज से फिर फ्लो कर वो प्रॉपर मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है। ठीक है। और इसके बारे में अगर और बात करें तो ये एग्जैक्ट यूपी में फ्लो करके देन यमुना जो एंड होता है इतवा, और फिर वहाँ से मध्य प्रदेश एंटर करता है। वो सब आपके लिए उतना याद करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हो गया अबाउट चंबल। ठीक है। चंबल के भी आगे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जैसे बानस हो गए, काली सिंध हो गए, पार्वती हो गए, दैट इज़ नॉट फॉर मच इम्पॉर्टेंस। तो मेजर जो इनके ट्रिब्यूटरीज है, सिंध हो गए, टन हो गए, चंबल, बेतवा, ये सब आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे क्या है। ठीक है। तो वापस से आप मैप को देख सकते हैं। हमारा यमुना बाजू के जो आता है यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन से पीक से आता है, तो मैंने आपको बताया बंदरपूछ पीक से वो ओरिजिनेट होता है। बंदरपूछ के पीक से ओरिजिनेट होकर प्रयाग इलाहाबाद में वो जाकर गंगा से मिल जाता है। ठीक है। फिर यमुना के मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हैं, चंबल हो गए, सिंध हो गए, बेतवा हो गए, केन हो गए, टन हो गए। ठीक है। ये सब उनके वन ऑफ द मेजर मतलब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जो यहाँ से फ्लो के निकले अलग, इसमें अलग अलग भी होते हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। सो ये इनके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, हमने देखा यहाँ पे मनीखेड़ा इज़ वन ऑफ द डैम सिंध पे बनाया जा रहा है, बेतवा के बारे में पढ़ा, चंबल के बारे में पढ़ा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारा टंस है जो आपको याद रहना चाहिए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इट इज स्पीकिंग अबाउट द ग्रास रूट लेवल, कि कैसे पैंडमिक में के सिचुएशन में होने के बाद भी हमारे इंडिया में वॉकिंग वॉज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अब ग्रास रूट लेवल बोलूँ तो क्या, अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस में बोलो, अगर हमारी अथॉरिटीज़ के हिसाब से बोलूँ तो ग्रास रूट लेवल हमारा बन जाता है पंचायत, क्योंकि इट इज़ एट द वेरी ग्रास रूट लेवल।
एंड अगर हम बात करें हमारे जितने भी अलग अलग लीडर्स थे, उनका हमेशा से ये मानना था कि इफ़ यू वांट डेवलपमेंट इन इंडिया यू हैव टू वर्क फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। एंड देयरफॉर कितने बार ये चीज़ बोला जाता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी वर्किंग दिख नहीं रही है, वो तो घूमते रहते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स आर सेड, बट इट इज़ बिकॉज ही हैज़ स्टार्टेड हिज वर्क फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। कभी भी अभी जैसे मैं अगर एक बिल्डिंग बोलूँ एंड मैं बिल्डिंग का बेस नहीं बनाऊंगी, जो नीचे वाला बेस नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट बना दूंगी, तो एक दिन, एक महीना, 2 महीना, एक साल के बाद दिस बिल्डिंग विल ऑब्वियसली कोलैप्स बिकॉज इट डजंट हैज़ अ बेस। ठीक है, एंड वहीं पे इफ़ आई विल हैव अ प्रॉपर बेस, पहले मैं उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करूँगी एंड देन आई विल मेक अ बिल्डिंग ओवर इट, इट विल रिमेन फॉर एवर, बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एंड दैट इज़ वेरी रीज़न कि हमारे पीएम ने ग्रास रूट लेवल से वर्क स्टार्ट किया है। आपने कितने स्कीम्स देखे हैं, क्यों? क्योंकि गरीबों को सबसे पहले मिलना चाहिए, हमारे जो एकदम रूरल एरिया है उनको मिलना चाहिए, and उसी से हमारा धीरे धीरे देयर विल बी चेंजेस इन इंडिया। ठीक है, 10 साल में एक्चुअली बहुत चेंजेस आ भी चुके हैं उनके फंक्शनिंग के अंदर। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पंचायत राज के बारे में बताया है कि कोविड के सिचुएशन में रहने के बाद भी पंचायत राज ने किस लेवल तक काम किया है, और हम बोल सकते हैं कि कितनी डिफरेंसेस कोविड सिचुएशन में लाया है। सो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन ये आया हो कि सबसे पहले पंचायत कहाँ पे चालू हुआ था। पंचायती राज या पंचायती सिस्टम जो है इंस्टीट्यूट, वो सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। तो यू कैन रिमेंबर दैट सबसे पहला जो है 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 वॉज द दिन जहाँ पे सबसे पहले पंचायत राज स्टार्ट हुआ था राजस्थान में, इन अ विलेज, और वी कैन से अडॉप्ट जो हुआ था नागौर, वहाँ पर सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था। और करंटली अगर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पर पहले एक था और अब जाकर देर आर ऑलमोस्ट 2,60,051 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो वर्क कर रहे हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख इलेक्शंस या 31 लाख इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं अक्रॉस द इंडिया वोट होते हैं या इलेक्ट होते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर एज अ सेल्फ गवर्नमेंट और एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सो देयर इज़ अ चेंज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर अभी इसमें अगर देखें देयर इज़ अ बॉटम अप्स अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो क्या होता है कि बॉटम अप, कि आप डाउनवर्ड से कैसे वर्क करते करते चेंजेस लाए। एक होता है अप बॉटम, दैट इज डायरेक्टली ऊपर से। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच की अगर मैं बात करूं, unlike the other disasters like earthquake, COVID situation has actually bring a long drawn effects on people everywhere. In such a situation, the traditional approach of bottom up disaster response have been used by many of the we can say institutes in this pandemic situations, and they have helped to reduce the risk, bounded swiftly and thus help the people. अब किस लेवल में अगर हम बात करें तो क्वारंटाइन सेंटर्स, कंटेनमेंट जोन, प्रॉपर चेकअप, दैट इज़ RT-PCR की चेकअप, देन वैक्सीन्स को लेके काम, ये सब काम एक्चुअली पंचायत सिस्टम ने बहुत एफिशिएंटली किया है। ठीक है, मोर एवरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा, मनरेगा के बारे में हम जान चुके क्या है। मनरेगा मिशन हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, जिसकी वजह से जो वनरेबल पॉपुलेशन थी उनको भी वर्किंग उनकी इफेक्टिव हुई है। ठीक है, देन द ग्राम सभा एक्ट एज अ साउंडिंग बोर्ड फॉर अ डाइवर्स आइडियाज एंड ओपिनियंस, जो भी सजेशंस होगा, जो भी डिसीजन नहीं बोल सकते बट येस, जो भी लोगों के इंटरेस्ट के रिलेटेड वर्क करना होगा वो कहीं ना कहीं हमारा ग्राम सभा करता है। ठीक है, एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली की जाती है एंड एवरी प्लेसेस। जैसे आशा वर्कर अगर हम बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्या है ये सब, सो दैट कि जितने भी लोग बैठे हैं, गरीब हैं, जिनको वर्क नहीं है, दे कैन स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, बेसिक एजुकेशन के बेसिस पे आप कम से कम वर्किंग तो स्टार्ट करो, यू कैन अर्न फॉर योर फैमिली एटलीस्ट। सो आंगनवाड़ी हो गया, आशा वर्कर्स हो गए, सो इट इज़ एक्चुअली क्लोजिंग द ब्रिज, और एक जो गैप था हमारे कम्युनिटी और ऑफिशियल्स के बीच में, उसको ख़त्म करने की कोशिश है थ्रू दिस इनिशिएटिव्स। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करो तो दैट इज़ बिल्डिंग कैपेसिटीज़। बिल्डिंग कैपेसिटीज़ में क्या बात किया है, तो इसमें एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बोला है, योकोहामा। योकोहामा स्ट्रैटेजी क्या है तो मैं बता देती हूँ कि नेशनल एक मीटिंग हुआ था, नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन मीटिंग, जो कि 1994 में हुआ था। उसमें वो लोग उस
मीटिंग का जो नाम था दैट वाज योकोहामा मीटिंग। उसमें स्ट्रैटेजीज उन्होंने अडॉप्ट की थी सो दैट जो क्लीनिंग हुआ, देन मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, ये सब से मतलब वर्क कर सके। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बात करें, जो मिटिगेशन है, प्रायर नोटिस, वो सब पे वर्क कर पाए। तो योकोहामा का नाम आया तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज रिलेटेड टू द डिजास्टर्स वर्किंग। तो उसको अडॉप्ट करने की बात की है कि उस पर हम काम करेंगे ताकि जो वनरेबिलिटी है सोसाइटी में उसको हम कम कर पाए, वी कैन रिड्यूस दैट वनरेबिलिटी। उसमें सबसे मेन रोल कौन प्ले करेगा, तो हमारा PRI, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बिकॉज दे विल एक्ट एक्चुअली अ प्लानर who will work according for the different communities and for the centrics of the center people centered local। ठीक है। सेकेंड, कंडक्टिंग रेगुलर लोकेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, उसी के अंडर ये सब बोला गया कि पहले PRI की वर्किंग एफिशिएंट होनी चाहिए। दूसरी, दे शुड हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके इंडिविजुअल कैन स्टार्ट इट्स कैपेबिलिटी, जो कैपेबिलिटी है उसकी वर्किंग स्टार्ट करे उस हिसाब से। एंड थर्ड is the community is usually the first responder in the case of disasters, so they should have a proper management plan। so ये कुछ initiatives दिए हैं so that we can work at the grassroots level and make our economy stronger or a society or a country stronger in that perspective। so I hope so आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। if you like the video, do like and subscribe the channel। thank you so much।